Hello friends, myself I welcome you in today's my new session in my new video based on MCQs part 5. I have started MCQ series for the subject called financial accounting. Before this video I have framed 4 parts of MCQs. Please friends, I request you to watch first that 4 parts of MCQs related with the subject called financial accounting. Especially I have framed this MCQ series for the students of FIBCom semester 1. And today this video is based on the chapter called structure of balance sheet. So one more addition in this chapter, one more video I have framed for this chapter called structure of balance sheet. So let us start now our MCQs. Number 1, unclaimed dividend appears in a company's balance sheet under the subhead. अनक्लेम डिविडेंड को कंपनीज की बैलेंस शीट में कौन सी सब हेड में रिकॉर्ड किया जाएगा? तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन ए शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ऑप्शन बी ट्रेड पेबल्स, ऑप्शन सी अदर करंट लायबिलिटीज, ऑप्शन डी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. Now it's a matter of unclaimed dividend, means dividend has not been claimed by the shareholders with the company, so it's a liability. First of all, that should be clear to you. All the options are from liability sections only. So this liability is of, the right answer is option C is the right answer, other current liabilities. It will be recorded under the subhead called other current liabilities. Next, interest accrued but not due on loans. Interest accrued but not due on loans appears in a company's balance sheet under the subhead called, so where we will record this particular point, interest accrued but not due on loan. Let us see the options. Other current liabilities, short term provisions, long term borrowings, or it may be short term borrowings. So where we will record this particular, it's a liability. All the options are from liability section only. The right answer is option A. Again, other current liabilities is the right answer. Next, number 3, 6% debentures, maybe any percentage, maybe 6, 10, 9, whatever percentage has been fixed by the company while issuing debentures. 6% debentures, or in short debentures, appears in a company's balance sheet under the subhead called, where we will record debentures. So let's have the options now. Long-term borrowings, long-term provisions, other current liabilities, or it may be trade payables. The right answer is, it is issued, debentures are issued by the company. So ultimately they are making borrowings from the outside. It's an external source of raising funds. So it will be recorded under the head called long-term borrowings. Option A is the right answer. Next, interest accrued on investments appear in a company's balance sheet under the subhead. Now it's investments. When we talk about investments, it is on asset side. So this is a point from asset side. So let's see the options. It will be recorded under the head either maybe non-current investments, current investments. It's a very critical one. Other non-current assets or other current assets. सारे ऑप्शंस एक जैसे ही लगेंगे आपको. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अदर करंट इन्वेस्टमेंट. वेयर वी विल रिकॉर्ड दिस पॉइंट, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो फिर इन्वेस्टमेंट वाले ऑप्शंस पे ललचा जाते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसमें आएगा ही नहीं. इट इज नॉट ट्रेड इन्वेस्टमेंट. सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट होता तो वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बेसिस पे हम यहाँ डिवाइड कर सकते थे.
लेकिन ये है इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट अक्रूड हो रहा है, इट इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड अल्टीमेटली। सो ये कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? इट्स एन इनकम विल बी रिकॉर्डेड अंडर दैट कॉल्ड अदर करंट एसेट्स इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which of the following items is shown under the head, which of the following item is shown under the head other non-current assets while preparing the balance sheet of a company? अब नीचे चार ऑप्शन में से डिसाइड करना है कि कौन सा ऑप्शन को, कौन से पॉइंट को, कौन से आइटम को अदर नॉन करंट एसेट्स में दिखाते हैं। चलिए चार ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए स्टॉक, क्या स्टॉक को हम अदर नॉन करंट एसेट में दिखाते हैं? क्या ट्रेड इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करते हैं अदर नॉन करंट एसेट्स में? क्या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट की रिकॉर्डिंग होती है वहाँ पे? और लाइव स्टॉक्स आते हैं। क्या आएगा? व्हाट इज द राइट आंसर्स? व्हाट इज द राइट आंसर इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट? स्टॉक इन्वेंटरी में जाता है दोस्तों। लाइव लाइव स्टॉक जो है ये सर ये एसेट है, टेंजिबल एसेट्स है ये। तो दो मैंने आपको बता दिए। अब बचा ये दो में से कौन सा सही जवाब होगा सर? ऑब्वियसली अब बचा क्या, एक तरीके से यूं समझ लीजिए ऑप्शन सी, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। इट्स अ फिक्टिशियस एसेट, इट्स एन अनरियल एसेट। ये तो ये सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, number 6, while preparing the balance sheet of a company, underwriting commission is shown under which head? अंडरराइटिंग कमीशन को हम कहाँ दर्ज करेंगे, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? चलिए ऑप्शंस देखते हैं। अंडरराइटिंग कमीशन की जगह कहाँ होगी बैलेंस शीट में? एक एक चीज तय है कि एसेट साइड पे आती है, इतना माइंड में रखिएगा। ऑप्शन ए क्लू दे दिया मैंने आपको, इंटेंजिबल एसेट, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बोरोइंग यानी ये हो गई लायबिलिटी, तो ये तो आना ही नहीं है। चलिए फिर ऑप्शन सी अदर करंट, अदर नॉन करंट एसेट्स, और ऑप्शन डी शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो ये हो गई आपके चार ऑप्शंस। अंडरराइटिंग कमीशन ये कहाँ दर्ज किया जाता है सर? ये एसेट साइड पे दर्ज किया जाता है, और इसको कौन से हेड में दिखाएंगे सर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इट विल बी रिकॉर्डेड अंडर द हेड कॉल्ड अदर नॉन करंट एसेट्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, which of the following items is shown under the head called current liabilities while preparing the balance sheet of a company? अब नीचे चार ऑप्शन में से ये डिसाइड करना है कि करंट लायबिलिटी में कौन सी चीज रिकॉर्ड की जाएगी। सो लेट अस हैव द ऑप्शन। क्या करंट लायबिलिटी में सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा? क्या डिबेंचर्स आते हैं? क्या लाइव स्टॉक आएगा? ये तो एसेट हो गई, तो लायबिलिटी में तो आएगा नहीं। चौथा ऑप्शन बहुत ही भयानक है, नन ऑफ द अबव। ऊपर जितने भी ऑप्शंस दिए इसमें से एक भी नहीं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है सर? रिजर्व एंड सरप्लस में रिकॉर्ड किया जाता है। डिबेंचर्स अभी हमने डिसाइड किया था पिछले कुछ स्लाइड में आया था आगे ही, डिबेंचर्स कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? सो डिबेंचर है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो वो भी यहाँ नहीं आएगा। लाइव स्टॉक सर एसेट साइड पे आता है। तो ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया है सर? इसका आंसर है नन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऐसा भी हो सकता है एग्जाम में, अनएक्सपेक्टेड पूछ लेते हैं हम, ऊपर के तीन में से सोच रहे होते हैं इसमें से कोई आंसर होगा, लेकिन कभी कभी कहानी में ट्विस्ट होता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ ले जिसका आंसर तीन जो ऊपर अवेलेबल है उसमें से एक भी ना हो। नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, which of the following items is shown under the head called intangible assets while preparing the balance sheet of the company? आप नीचे जो चार ऑप्शन दिए होंगे उसमें से आपको डिसाइड करना है कि कौन सी एसेट इनटेंजिबल एसेट है। नीचे जो भी आपको पॉइंट्स दिए होंगे, पहला पॉइंट है इन्वेंटरी। इन्वेंटरी का रिलेशन किसके साथ होता है सर? स्टॉक के साथ होता है, गुड्स के साथ। दूसरा पॉइंट है लूज टूल्स। थर्ड ऑप्शन है कॉपीराइट्स। फोर्थ ऑप्शन है कैश एंड बैंक बैलेंस। इसमें से इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी है? इंटेंजिबल एसेट का अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप आसानी से इसमें से सिलेक्ट कर पाएंगे कि भाई सही आंसर क्या है। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होता है सर? विच आर नॉट हैविंग एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसे हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, उसे कहते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कॉपीराइट्स इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं। नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज शोन अंडर द हेड कॉल्ड टेंजिबल एसेट्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी? अब चार ऑप्शन में से आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सी इसमें से टेंजिबल एसेट है। टेंजिबल एसेट इंटेंजिबल का उल्टा, रिवर्स कर देंगे। ऐसी एसेट जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसे हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसे हम कहेंगे टेंजिबल एसेट्स।
मैंने क्लू दे दिया आपको। अब आप ऑप्शन देखिए, रेसिपी पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है पैटर्न्स, थर्ड ऑप्शन है ट्रेडमार्क्स और फोर्थ ऑप्शन है मोटर कार। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो, टेंजिबल एसेट का मीनिंग भी बता दिया मैंने आपको। तो इसमें इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मोटर कार। चलिए नेक्स्ट, नंबर 10, the assets that can be easily converted into cash within a short period, that is 1 year or less, is known as। ऐसी एसेट जिसको हम आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर हमें कैश की रिक्वायरमेंट है तो हम उसको इजीली बेच सकते हैं, तो वो एसेट्स को, वो कौन सी एसेट्स, तो वो आपको बतानी है। अगर हम पीरियड की बात करें तो 1 साल के अंदर आप उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, या उससे भी कम समय में। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है करंट एसेट्स, दूसरा ऑप्शन है फिक्स्ड एसेट्स, थर्ड इज इंटेंजिबल एसेट्स एंड फोर्थ इज इन्वेस्टमेंट्स। तो एक बात तो तय है कि ये एसेट है, तो एसेट यानी इन्वेस्टमेंट्स तो होंगे नहीं। तो अब बचा क्या सर? तीन बचे, तीन में से इंटेंजिबल के अभी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया, बचे क्या? करंट और फिक्स्ड। फिक्स्ड एसेट क्या होती है? लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह, ये तुरंत तो बिकेगी नहीं, 1 साल में बेचना मुश्किल है, मुश्किल हो सकता है हमारे। तो बचा क्या सर? ऑप्शन ए, करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स आर कॉल्ड नॉन करंट एसेट्स इन अदर वर्ड्स, ठीक है। इंटेंजिबल को भी एक तरीके से नॉन करंट एसेट्स में ही उनका समावेश होता है। ओके, सो ये क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, डैश अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द सब हेड कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स को हम कहाँ दर्ज करेंगे? मीन्स ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या आएगा? ये जो हेड है, ये सब हेड के अंदर ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर कौन सी आइटम, कौन सी चीज को हम रिकॉर्ड करेंगे? तो 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन बताना है। पहला है क्रेडिटर्स, दूसरा है लूज टूल्स, थर्ड पॉइंट इज डेटर्स, फोर्थ वन इज बिल्स पेबल। आपको इसमें से बताना है कि सही जवाब क्या है। क्रेडिटर्स का रिकॉर्ड करेंगे, लूज टूल्स को रिकॉर्ड करेंगे, डेटर्स को, या बिल्स पेबल को? तो आप ध्यान से देखिए, तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल जो लायबिलिटीज सेक्शन में आता है, ट्रेड रिसीवेबल जो है एसेट साइड में है। तो अब लूज टूल्स और डेटर्स की बात करें तो लूज टूल्स कम्स अंडर दैट कॉल्ड इन्वेंटरी, इन्वेंटरी में आता है दोस्तों। तो बचा क्या? तो हमारा सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, डेटर्स विल बी रिकॉर्डेड अंडर दैट कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल्स। आखिरी एस एमसीक्यू पे चलते हैं। डैश अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द सब हेड कॉल्ड इन्वेंटरी। अगर 11 वाला अच्छे से सुना होगा तो ये आंसर आप 1 सेकंड में दे देंगे। पहला ऑप्शन देखते हैं, इन्वेंटरी में क्या रिकॉर्ड किया जाएगा? नीचे ऑप्शन जो अवेलेबल है, लाइव स्टॉक। दूसरा ऑप्शन है लूज टूल्स, तीसरा ऑप्शन है प्रीपेड एक्सपेंसेस, चौथा ऑप्शन है बॉन्ड्स। चलिए, बॉन्ड्स तो सर एक तरीके से लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो सकती है। अगर बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट दिखाया हो तो इन्वेस्टमेंट सेक्शन में भी आ सकता है, डिपेंड करता है किस तरीके से दिया है बैलेंस आपको सम के अंदर। प्रीपेड एक्सपेंसेस अदर करंट एसेट्स में जाता है, ये हमको पता है। तो अब बचे दो, लाइव स्टॉक और लूज टूल्स। स्टॉक देख के बंदा इन्वेंटरी स्टॉक से जुड़ा हुआ होता है, तो लाइव स्टॉक देखता है, तो इन्वेंटरी में शायद ऑप्शन ए लिख के आ जाए, लेकिन सही जवाब क्या होगा? लाइव स्टॉक को जो है दोस्तों वो है एसेट। कैसी एसेट है ये सर? टेंजिबल एसेट है, इसलिए उसको टेंजिबल एसेट में दिखाया जाता है। बचा क्या सर? लूज टूल्स। अभी हमने डिसाइड किया था 11 नंबर पे, तो सही जवाब है लूज टूल्स। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इसी तरीके से मेरे वीडियोस देखते रहेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और वीडियोस अपडेट करता रहूँगा, अपलोड करता रहूँगा आप लोगों के लिए खास। ऑल द बेस्ट फॉर योर एमसीक्यू एग्जाम्स।